जब टाइगर स्लीप जो होती है, जो टाइगर जंप, उसमें जो प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी ऊंची होती है, तो मैं वहाँ से जब जंप किया मैंने तो रोप पकड़ा और बैलेंस नहीं बना सका अच्छे से मैं, और रिजल्ट क्या हुआ कि मैं वहाँ से गिर गया उतने हाइट से। तो गिरने के बाद मुझे चोट लगी थी, मैं उठ नहीं पा रहा था सही से। जीटीओ ने बोला कि इफ़ यू आर नॉट ओके देन यू मे क्विट दिस टास्क, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस टास्क बिकॉज योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। Hi friends, this is Bhaskar Kumar from Bhagalpur, Bihar, and I have recently got recommended for ground duty administration and logistics from 1FSB Dehradun. Next few minutes I will be sharing my experience of SSB interview at 1FSB Dehradun. I will also give you some introduction about myself and a brief journey of my preparation. So firstly, I would like to thank the Target Defence Forces, a very good platform to improve my English communication skill, which was very challenging thing for me, as I was a student who has done his schooling from his village only, and I am from Hindi medium background, so it is obvious that I had lots of difficulties in spoken English part. Although my grammar was good, but my spoken English was very or say it was not up to the mark. So the lack of confidence was also a problem in my other two attempts, in which I was screened out. In my first SSB, I was not even able to narrate my story confidently. But after that, in my second attempt, I improved it, but unfortunately could not clear the screening because of, again, the preparation of mine was not that up to the mark. So now coming towards my SSB experience at Dehradun. So on 1st September, there was 190 reportings for SSB interview, and out of which 57 candidates were screened in, and 5 were finally recommended. 3 were from flying branches and 2 were for ground duty branches. I was also for flying, but unfortunately could not clear the CPSS stage 2, and now I am eligible only for the ground duty branches. So we are 4 friends preparing for the SSB interview, and 2 of us have made it, and Karan, who is one of my friend, has also recently got recommended from the same board, 1FSB Dehradun, one batch before me. He was from DFK and I was from. Now I'll be sharing my experiences of preparation at Target Defence Forces. First of all, I came to know about it when my friend Karan told me about it, that he was looking for some videos at YouTube regarding the SSB preparation, and he came across with the one of videos of Vivek sir of Target Defence Forces. He find it very helpful for him. He joined it, and he also told me that he was very he was feeling very benefited from it. So he insisted me to join it, and I also joined it, and very much and the result can easily be seen now. And now I'll be sharing the experience that how the preparation is done over there. So actually, first of all, at Target Defence Forces, we have the opportunity to interact with lots of students across the country, or say they are very good students with very good content. They are very good students, and other things like they are also excelled in the extracurricular activities also. So after interacting with them, lots of things I have learned from them, and which I have applied in my interviews also, after learning very wide experience of their lives. And I got a chance to interact with various people. So talking about the preparation, so we do some lecturate topics on daily basis. We make the video of that and submit that in a WhatsApp group, and after submitting the lecturate video only, we are eligible to participate the daily GD program of Target Defence Forces. And in GD also very good points are provided there, and lots of students are preparing, and they have very good contents. So after interacting with them, after discussing with them, we got to learn so many things. So our content, our GK is already improved by doing so. Now
the best part with Lectureit is, as we have to send it in video format, so it enhances our confidence. And as I was struggling in my spoken part of English, it helped me a lot. Now I'll be telling about the other preparation what we do over there, that as our SSB are near, so we all start preparing for the PPDT sessions also, sir, through video conference process. So we are approx 7 candidates are prepare. We usually do prepare on a video conference. We are provided a picture and then we weave the story around that, and the process of the PPDT conduct is the same as in SSB, and we are randomly shifted in the groups of repeaters, the screened out repeaters and freshers, and even the male and female batches also sometimes merged. So that also enhances our confidence. So now starting about the journey of SSB. So there was after we were all screened in, so we were provided the accommodations, and after that some documentations were also done. The PIQ forms I have also filled, and the very good thing about it that I have already prepared how to fill the PIQ form, so I did not have any doubt regarding this. And I have also at Target Defense Forces my PIQ with Vivek sir was already discussed. So during my personal interview I did not face any difficulty at all. So now I'll be sharing my experience of TAT. So again, as I was prepared beforehand, so in TAT also, as we have to send daily one story and 5 SRTs and 5 WATs to Vivek sir personally, and he analyzes those things and he does necessary improvements. And the best thing which I have seen with Vivek sir, that he doesn't say to prepare any story or any preconceived story, like जो कोचिंग वाले करते हैं कि आपको ऐसी स्टोरी अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको बहुत अच्छा क्वालिटीज़ वगैरह दिखाने हैं, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा. उन्होंने हमारे ही थीम को हमेशा उसे इम्प्रूव किया कि जैसा हम लोगों ने एक्शंस दिखाया वहाँ स्टोरी में, उसमें जो भी नेसेसरी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो कि एक उस रिलेटेड प्रोफेशन के लोग करते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग एक एग्जांपल लें कि अगर कोई स्टूडेंट स्टडी टेबल पे बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, तो इसे उन्होंने उनका जो स्पेशली जो गाइडेंस था वो इस बात से रिलेटेड था कि जो हमारी स्टोरी होनी चाहिए वो हमसे रिलेटेड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं. तो हमारी जो स्टोरी होनी चाहिए, जो हमारे एक्शंस हैं वो ईजिली वहाँ से मैच हो जाते हैं. तो ये बहुत अच्छी पार्ट थी. हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखे थे बहुत सारे SRTs, और फुल बैटरी टेस्ट भी हमारी ऑर्गेनाइज की जाती है जो कि वीकली होती है. आफ्टर जब हम लोग 12 स्टोरीज प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब हमारी पूरी एक सीरीज़ प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट जो कि SSB वाला फॉर्मेट होता है, उसमें हमारे TAT, WAT एंड SRT वगैरह डिस्कस, एक्चुअली वो फुल लेंथ टेस्ट होता है जो कि सभी को करना होता है. तो उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, और उसके डिस्कशन के बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी होते हैं उसमें. तो TAT वाला पार्ट इस तरह से क्लियर हो गया. मैंने एक्चुअल SSB में सारे स्टोरीज लिखे थे, बट मेरी 11वीं स्टोरी जो थी उसमें मैंने लास्ट के 2 लाइन मेरे छूट गए थे, बिकॉज द टाइम प्रोवाइडेड देयर इज़ only 4 minutes, and my story was a bit longer for 11th story only, because all the other stories I have finished it in 8 or 9 lines, so it was very short story. But in 11th story it was a bit longer than that, so that took a time. Due to that I could not complete in the 4-minute time, but I did not kept struggling for that. I just skip it and move towards the next story, that was the blank story. और ब्लैंक स्टोरी की सबसे अच्छी बात यहाँ ये थी प्रिपरेशन के दौरान कि हम लोगों ने कम से कम 3-4 ब्लैंक स्टोरी प्रिपेयर कर रखे थे कि अगर हमें कोई थीम वहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता तो जनरली नहीं है कि जो हम लोगों ने सोच के हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो वो आ जाती है वैसी थीम, तो अगर हम लोग वैसी स्टोरी वीव कर देते हैं तो हमें दूसरी स्टोरी बनानी पड़ती है. तो इसकी प्रिपेयर्डनेस पहले से थी हमारी. और ड्यूरिंग द
WAT तो पहले तो TAT के दौरान मैं काफ़ी स्पॉन्टेनियस था, मैंने सारे स्टोरीज़ को अपने लाइफ से रिलेट करके बनाया, मुझे जो भी दिख रहा था, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द CDS एंड CAPF एग्जामिनेशंस, सो द स्टूडेंट हु वाज शोन इन द पिक्चर, I just weave the story around the student who was preparing for the CDS and CAPF examination and put the necessary actions which was required and which are the efforts to complete those examinations. So उसके बाद हमारी WAT आती है. WAT की सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि जो हमें सिखाया गया कि the misconception which I was having before joining the TDF, that we have to make a sentence whenever we see a word, we need to make a sentence, but it is not like this. We should put the first thought which strikes in our mind firstly. So विवेक सर ने ऐसा बताया कि हमें हमेशा पॉजिटिव वाली चीज़ें सोचनी है. तो जैसे भी कोई वर्ड दिखाया, जैसे मैंने तो 57 टोटल सेंटेंस के फॉर्मेट में करे थे वर्ड, बाकी जो 3 थे उसमें मैंने जो मेरे दिमाग में जो वर्ड स्ट्राइक किया मैंने वही लिख दिया. जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैंने लिखा कि किल आया, तो किल में मैंने लिखा एनिमी. फिर दूसरा वर्ड था इंटरप्रेटर. सो काफ़ी लंबी वर्ड थी ये, जिस पे कि सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता, तो मैंने वहाँ लिखा टॉक्स बाय हार्ट, लाइक व्हेन हार्ट टॉक्स देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटरप्रेटर. सो इस तरह के सेंटेंस और इस तरह के WAT रिस्पॉन्सेज थे मेरे. SRT में मुझे यहाँ पे जो प्रिपरेशन मैंने करी ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए. मैंने टोटल 31 SRT ही किया, जो कि ऐसे बोलते हैं ये कम है. हमें हमेशा प्रिपरेशन करनी चाहिए कि एटलीस्ट 45 हम पूरी कर सकें विथ प्रॉपर सॉल्यूशन. हमारे सॉल्यूशन क्रिस्प तो होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेसेसरी एक्शंस हम लोग ओमिट कर दें. हमें सारे नेसेसरी चीज़ें वहाँ दिखानी है. 2-3 लाइन के मेरे रिस्पॉन्स हुआ करते थे SRTs के, और आफ्टर 2 to 3 days प्रिपरेशन एट TDF सर ने मुझे बताया कि मेरे SRT रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है बस वहाँ पे. तो मैंने मेरे जो SRT के नेचुरल रिस्पॉन्स हुआ करते थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कोई आदमी है वो स्टेशन पे वेट कर रहा है, सडनली वो एक एक्सप्लोजन का साउंड सुनता है, व्हाट विल ही डू. तो मेरे जो रिएक्शंस थे वो काफ़ी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस थे, जो हम रियल लाइफ में करते हैं. हम कुछ सुपरमैन वाली काम तो करते नहीं हैं. अगर हमें कुछ एक्सप्लोजन सुनाई पड़ेगा तो पहले हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में, उसके बाद नेसेसरी एक्शंस लेंगे. तो मेरे रिएक्शंस इसी तरह के थे. लाइक एक रिएक्शन था कि हम लेट पहुँचते हैं घर, हमारे फादर स्कॉल्ड करते हैं उसके लिए, तो हम क्या करेंगे. तो लाइक व्हाट वी डू ओनली दैट वी गिव हिम क्लियर explanation that why was I late simply, and our father gets convinced. So सिंपल चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी वहाँ पे कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा, रीज़न बताऊँगा क्यों मैं लेट था. तो ये सारी तो हमारी साइकोलॉजी की बातें हो गई. उसके बाद हमारी GTO में हुआ कि GTO के लिए कंटेंट काफ़ी प्रिपेयर्ड था. TDF पे हम लोग रोज़ लेक्चरेट्स डालते थे, काफ़ी सारे लेक्चरेट्स के टॉपिक प्रिपेयर्ड हो गए थे हमारे, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने कोई भी जैसे लोग वहाँ पे एक थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगाते हैं कि कौन सी चिट उठाऊँ, कौन सा टॉपिक बोलूँ, वहाँ पे लक भी आजमाते हैं लोग, बिकॉज लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उतने अपने प्रिपरेशन को लेके. स्पेशली द फ्रेशर्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं. सो दे लिटरली, विवेक सर भी बहुत बताते थे कि दे विल डू एनीथिंग, मीन्स वो कुछ भी बोल देते हैं वहाँ जाके. तो ये नहीं करना है, बिकॉज कैजुअल लोगों के लिए SSB में कोई जगह नहीं है. हमारी प्रिपेयर्डनेस इवेल्युएट की जाती है, हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ आवर ड्रीम टू सर्व आवर कंट्री वियरिंग द यूनिफॉर्म. तो हमें उसके लिए एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी थी. मेरी पर्सनली कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टेड थी. मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी. तो इन लेक्चरेट मेरी प्रिपेयर्ड टॉपिक थी, वही मुझे वहाँ आया था, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. मैंने उस पर बोला, 3 मिनट तक बोला, और उस दौरान मेरे आई कांटेक्ट मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ था. वो पार्ट बहुत अच्छा था क्योंकि पूरे ग्रुप में किसी का वैसा नहीं था. तो ये चीज़ बहुत अच्छा था. और GD में हमारा क्या हुआ कि GD में हमें जो टॉपिक्स मिले थे तो उस पर कंटेंट्स ऑलरेडी थे हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने रोज़ रात को 8 बजे हमारी GD होती है, उसमें
सेम टॉपिक्स आते हैं जो कि एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जीडी में डिस्कस करते हैं, तो उनके पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और सर का हमेशा इंस्ट्रक्शन होता है कि योर जीडी शुड बी इन अ गेनफुल मैनर। तो हमारी जो जीडी होती थी उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का। और जीडी में मैंने काफ़ी कामली पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैंने पहले 4 से 5 लड़कों को मैंने बोलने दिया, फिर मैं 5वां स्टूडेंट था जिसने कि अपना पॉइंट रखा। हमारी टॉपिक थी अर्बनाइजेशन के कारण जो वाटर क्राइसिस होती है, इस पर हमें बोलना था। और दूसरी जीडी जो हमें प्रोवाइड कराया गया था वो था रोड एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो उस पर जो हमारे टॉपिक थे, मेरे जो लीड्स थे और मैंने जो उससे सपोर्ट किया, जो हमारे पॉइंट्स थे वो काफ़ी जेन्युइन थे। तो और उसमें कुछ फैक्चुअल डेटा भी थे जो कि मैंने यहाँ पे सीखा था। और कुछ जीके वगैरह भी मैं पढ़ता हूँ, बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो ऑफ एसएससी एंड अदर यूपीएससी सीएपीएफ ऑल्सो। तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली। तो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। तो जीडी में भी हमने अच्छे से 4 से 5 बार मैंने बोला और काफ़ी अच्छे वैलिड पॉइंट्स रखे, और कोई कैओस नहीं, कोई कैओटिक सिचुएशन नहीं हुआ हमारे जीडी में। बट जीपी में हुआ हमारा कैओटिक सिचुएशन, बिकॉज वी ऑल नो दैट जीपी में everyone is having very good ideas and they want to put their ideas first. So my personal opinion regarding this is we need to listen, because a good leader should be a very good listener also. We all know it, but we should apply it also over there. So मैंने अपने पॉइंट्स रखना चाहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी हमारे पास था अवेलेबल रिसोर्सेज एंड जो भी मैंने एनालाइज किया सिचुएशन को, वहाँ पे उस अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। हमें जीपी का फॉर्मेट प्रॉपर भी बताया गया था टीडीएफ में, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। और कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे वहाँ पे लिखना है विद इन प्रोवाइडेड टाइम, वो भी काफ़ी क्रूशियल पार्ट था। तो मैंने सुना, जो भी ग्रुप का मेजॉरिटी का जो डिसीजन था मैंने उसे सपोर्ट किया। तो हमारी जीडी जो थी, जीपी वाली जो हमारा जो डिस्कशन था, वो एक कंसेंसस पे पहुँचा और हम लोगों ने अच्छा सॉल्यूशन बनाया। इस दौरान मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हम लोगों ने दिया अपॉर्चुनिटी चेस्ट नंबर 1 को कि आप जो है कॉमन नैरेटिव बोलो, बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग मच इन आर जीडी पार्ट, द प्रीवियस 2 जीडी पार्ट। सो हम लोगों ने सोचा कि इसे मौका देना चाहिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही रिफ्यूज्ड इट, ही जस्ट पास्ड इट टू द चेस्ट नंबर 4। तो ये पार्ट हमें नहीं करनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। द प्रॉपर जो थिंग जो हम सीखते हैं कि एक लीडर में इनिशिएटिव होना चाहिए, तो वो इनिशिएटिव यहीं दिखता है हमारा, कि अगर हमें नॉमिनेट किया गया किसी प्लान को, किसी नैरेटिव को बोलने के लिए, तो उस दौरान हमें प्रॉपरली उसे नरेट करना चाहिए, हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि आप लोग जब भी ये चीज़ करें तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, बिकॉज दैट इज़ द ओनली की। और जस्ट मैं जब मेरी रिपोर्टिंग थी उससे पहले एक दिन पहले मैं देहरादून में करण से मिला, और उसका कॉन्फिडेंस देख के मेरे अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया। देन I just rang Vivek sir and told him that, sir, I have to get recommended. Just only thing that I have to get recommended this time. I will not miss this opportunity. So उन्होंने बताया कि you have capabilities, you will certainly make it. Just stay confident, things will automatically fall in right place. तो मैंने उनकी बातों को याद रखा, मैंने अपने फ्रेंड की बातों को याद रखा। और जो हमारा पीआई होता है, जब मैं पीआई की तरफ अब आ रहा हूँ, तो जब हमारा जो पीआई होता है तो वो उसी के दौरान हमारा रिवॉल्व होता है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हमने अपने लाइफ को कितनी अच्छी से एनालाइज किया है, ये चीज़ें काफ़ी काम आती है वहाँ पे। और उससे पहले मैं जीटीओ के एक्सपीरियंसेस को फिनिश कर लूँ। तो हमारे पीजीटी में क्या हुआ, तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट टास्क तो ख़त्म हो गए लेक्चरेट के साथ। फिर हमारे जब पीजीटी स्टार्ट हुए, तो पीजीटी के दौरान जब मुझे आइडिया आ रहा था तो मैं दे रहा था, जब मुझे आइडिया नहीं आ रहा था तो जो ग्रुप का आइडिया था उसे सपोर्ट कर रहा था, जो प्लैंक थे, जो बली थी, जो रोप थी, जो लोड थे, मैं उसे कैरी कर रहा था। जो भी मुझे ग्रुप वाले बोल रहे थे तो मैं वो प्रॉपरली कर रहा था, जहाँ पे आइडिया आ रहा था वहाँ पे मैं दे रहा था। और आइडियाज़ आते हैं, ये ट्रुथ है, बिकॉज जो चीज़ें, जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हमारे कॉमन डेली लाइफ एग्जाम्पल से ही रिलेटेड होती है। जो हमारी जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है वो वहाँ काम आती है। तो ये वाली जो बातें हैं वो हमें याद रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पीजीटी में हम लोग अच्छे आइडियाज़ नहीं दे पाए तो हमें मौका नहीं है अपने आप को दिखाने का।
हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो जो हमारे जो फाइनल ग्रुप टास्क होते हैं वो फाइनल चांस हमें मिलता है कि अपने आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को वहाँ मैं अच्छे से दिखा सकूँ, प्रोजेक्ट कर सकूँ। तो बहुत सारे टास्क होते हैं, हमारा इवैल्यूएशन कोई एक पर्टिकुलर टास्क पे डिपेंड नहीं करता है। तो वी डू नॉट नीड टू गेट डिसहार्टेंड इफ वी हैव डन नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू अस इन एनी पर्टिकुलर टास्क। और यहाँ पे मैं एक अच्छा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल जो होते हैं एएफएसबी के, वो आर्मी वाले एसएसबी से थोड़े से टफ होते हैं। तो वहाँ पे मैं सिर्फ 5 ही इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कर सका। और उस दौरान मैं जब टाइगर स्लीप जो होती है, जो टाइगर जंप, उसमें जो प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी ऊंची होती है। तो मैं वहाँ से जब जंप किया मैंने, तो रोप पकड़ा और बैलेंस नहीं बना सका अच्छे से मैं, और रिजल्ट क्या हुआ कि मैं वहाँ से गिर गया उतने हाइट से। तो गिरने के बाद मुझे चोट लगी थी, मैं उठ नहीं पा रहा था सही से। जीटीओ ने बोला कि इफ़ यू आर नॉट ओके देन यू मे क्विट दिस टास्क, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस टास्क बिकॉज योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो वहाँ पे मैंने क्लियरली रिफ्यूज़ किया। मैं उठा, बुलंद आवाज़ में बोला, नो सर आई वॉन्ट गिव अप, आई विल कंप्लीट इट। एंड फिर मैं दौड़ता हुआ गया और मैंने मंकी क्रॉल कंप्लीट किया। उसके बाद बेल बज गई और मेरे टास्क, वो जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल था, वो ओवर हो गया। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना होता है कि हमें अपना प्रॉपर वहाँ पे अपना फोकस देना होता है। हमें जो भी टास्क मिलते हैं वहाँ पे बिना डर के उसे कंप्लीट करना होता है। ये एक सोल्जर का एटीट्यूड होता है कि वो गिव अप नहीं करना चाहिए उसे, और एक लीडर का भी यही एटीट्यूड होना चाहिए। तो अब मैं आता हूँ अपने अदर टास्क पे। जैसे कि हमारे ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस तो हुआ नहीं वहाँ पे, तो अब जो हमारी जो पीआई थी, हमारी पर्सनल इंटरव्यू, वो मेरी थी 4th डे। मैं वहाँ पे गया अपनी पीआई देने वहाँ पे। तो मेरी पीआई जो थी वो 65 मिनट चली थी, और उस दौरान मेरे जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे वो मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ के अराउंड ही थे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब तक जो बियर की है, उसके बाद जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, और अदर थिंग्स जैसे कि थोड़ा बहुत जीके का भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ऐसे वहाँ पूछा नहीं जा रहा था जीके का क्वेश्चन, बट एज आई हैव टोल्ड देम एज माई बैकअप प्लान वॉज द यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, तो इट वॉज ऑब्वियस दैट देयर वॉज सम जीके क्वेश्चन मे अराइज टू यू। तो वहाँ पे भी मैंने आंसर्स किए, अप्रॉक्स सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते थे। बट स्टिल इफ़ वी डोंट नो एनी आंसर, so we don't need to get depressed or we don't need to get under confidence, because ultimately confidence plays the vital role and we don't need to lose that, because answering question is not that much important. What is important is your attitude throughout the personal interview. अगर आप 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर बता रहे हो, सॉरी सर आई डू नॉट नो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरीवन डजंट नो एवरीथिंग। सो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें गेन की जा सकती है। पूरी लाइफ पड़ी है हमें नॉलेज गेन करने के लिए, और हम करते भी हैं, हम सीखते हैं अपने डेली एक्सपीरियंसेस से। वो एटीट्यूड होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए आपके अंदर। तो मेरी जो, अब मैं इंटरव्यू के कुछ इंसिडेंट्स मैं शेयर करना चाहूँगा। तो पहला जो था वो बराज ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, CIQ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। पहले राउंड में मुझसे 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से कि मैं एक भूल गया था और मुझे याद भी नहीं था कि मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने खुद ही मुझे रिमाइंड कर दिया वो क्वेश्चन। तो पहला जो सीरीज़ था वो मेरे एकेडमिक्स, मेरे एजुकेशन, उसके बाद मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें, फिर मेरे फ्रेंड्स और मेरे बैकअप्स, ये थे। तो मैंने सबके आंसर्स किए, अच्छे से किए कि मेरी एजुकेशन कैसे हुई, क्या क्या चैलेंजेस था, क्या क्या अचीवमेंट मैंने किया। फिर मैंने मेरी जो PIQ थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस बने, कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी बने। बट हियर आई वांट टू से वन थिंग दैट वी डोंट नीड टू गेट इमोशनल. Lots of you guys also have some problems, some difficulties you must have faced in your entire life, that after discussing that experience you get emotional. But we don't need to get that emotional, or we don't need to be emotional over there. We have faced it, we have faced all the challenges, we have done it in a very efficient manner. So we should be proud of ourselves and we should say it proudly even in the interview. तो मैंने वही चीज़ें करी। मुझसे मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछा गया तो मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रहा मैं। दैट इज़ द ओनली की टू गेट सक्सेस इन PI पार्ट, कि आप अपने रिस्पॉन्सेज को बिल्कुल ऑनेस्टली रखो। ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी वहाँ पे।
और मैंने सारी चीज़ों को वहाँ पे एक अच्छे मैनर में बोला, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स के बारे में पूछा गया कि कैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने बताया कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, कुछ मैनेजमेंट फील्ड में हैं, और जो 4 फ्रेंड्स हैं हम लोग एसएसबी की ही प्रिपरेशन करते हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे करते हो प्रिपरेशन, तो मैंने बताया कि वी कीप आवर सेल्फ अपडेटेड, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स आर have very good grasp on GK as well as on the current affair part, so he discussed it with us, and we also whatever we know good, like I have whatever I have the knowledge I share with them, और इससे काफ़ी कंटेंट हमारा डेवलप होता है और हमें अपने आप को एक बेटर वे में फाइंड करते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में हम लोग अपने आप को देखने लगते हैं कि हमारे पास कंटेंट आ गया है, और कंटेंट ही अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाता है हमारी। तो मैंने वो उन चीज़ों को वहाँ डिस्कस किया। फिर उन्होंने पूछा कि पढ़ाई के अलावा क्या चीज़ करते हो, तो मैंने बोला कि मेरी जो रूटीन है, मैं 5 बजे जग के फिर दौड़ता हूँ, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स वगैरह करता हूँ, कुछ प्रिपरेशन भी करता हूँ, एसएसबी से रिलेटेड डिस्कशन होती है हमारी, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, कुछ ह्यूमरस मोमेंट भी बनते हैं वहाँ पे हम लोग। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ह्यूमरस मोमेंट बनते हैं, तो मैंने बताया जो भी सब हम लोगों के सारे फ्रेंड्स सर्कल में ये होता है, तो हम लोगों को अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो चीज़ें बतानी है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट पूछा, जैसे व्हाट यू हैव डन एडवेंचरस इन योर एंटायर लाइफ। तो मैंने कुछ वैसा एडवेंचरस किया नहीं था, एक आध छोटी मोटी एडवेंचरस घटना थी, मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने इंटरव्यूअर ने थोड़ी सी मुस्कुराया उन्होंने बोला, भास्कर यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट्स ऑफ एडवेंचरस अपॉर्चुनिटीज़ इन एयरफोर्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें हुई डिस्कस वहाँ पे। फिर जो बात आया फैमिली के अराउंड आया कि मैंने अपने फैमिली के साथ मैं कैसे शेयर करता हूँ अपनी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती है। मैंने बताया कि कभी कभी इमोशनल चीज़ों को भी शेयर करता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या इमोशनल चीज़ें होती है, तो हम सारे की वो डिफरेंट होती है, तो मैंने वो बताया। उन्होंने पूछा कि क्या बेस्ट गिफ्ट आपने अपने मदर को दिया, क्या बेस्ट गिफ्ट आपने अपने सिस्टर को दिया। सो दिस क्वेश्चन मे अराइज टू यू गाइज ऑल्सो, so prepare these questions in well manner, analyze that whatever you have done for your siblings, for your parents, remember that and say them what is the truth. उसके बाद कुछ एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, उसके भी आंसर्स मैंने किए। एक क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे नहीं आता था, तो मैंने उसमें बोला कि आई विल सर्टेनली फाइंड इट सर, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो हमारा दौरान मतलब हमारे पीआई के दौरान जो और सारे क्वेश्चंस आए, जैसे जीके के रिलेटेड थे, तो मैं बिहार से था, तो बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे गए थे, मैंने आंसर किया, तो मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा आगे तक बढ़े थे। तो ये चीज़ें होती है वहाँ पे, तो इसके लिए ये डिफरेंट होते हैं। वहाँ एफएसबी में मैं एकलौता ऐसा था जिससे जीके के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था, और किसी से ये सारी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुई थी। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें नहीं है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई विल पुट माई ओपिनियन हेयर दैट स्टिल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ क्लास 1 ऑफिसर एग्जामिनेशन, सो वी नीड टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड वट एवर ऑन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, वी नीड टू गेट आवर सेल्फ कंटेंटफुल। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और हम लोग ग्रेजुएट एंट्रीज़ के लिए हैं, तो हमसे इतना तो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि हमें कुछ कंटेंट्स आता हो। फिर जो हमारा अल्टीमेटली जो इंटरव्यू का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो हमने यहाँ टारगेट डिफेंस फोर्सेस में भी मेरी इंटरव्यू हुई थी, कुछ तो शॉर्ट टर्म इंटरव्यू हुई थी, कुछ फुल लेंथ इंटरव्यू भी हुई थी हमारी। तो उससे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। लगभग 3 से 4 बार मेरे PIQ वगैरह डिस्कस किए गए थे, कुछ पार्ट वाइज, और एक फुल लेंथ भी हुई थी मेरी इंटरव्यू, यहाँ पे विवेक सर ने करवाया था। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। मैं थ्रू आउट द इंटरव्यू मेरा फेस स्माइलिंग रहा, मैं कहीं भी अंडर प्रेशर नहीं आया। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि आप अपना चेहरा जो है वो काफ़ी स्माइलिंग रखो। तो इससे होता है कि एक आप नर्वसनेस को अवॉइड कर सकते हो, और नर्वसनेस होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उतने बड़े रैंक के ऑफिसर के सामने बैठ के इंटरेक्ट करने का। तो ये चीज़ें हमें ऑलरेडी भीड़ से अलग बनाती है। तो इसे हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रूप में देखना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी प्रिपरेशन में। तो अल्टीमेटली अब कॉन्फ्रेंस डे का आता हूँ मैं। कॉन्फ्रेंस में मैं लगभग 8-10 मिनट मुझे वेट करना पड़ा था, और अंदर मैं जब गया तो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग एनवायरनमेंट।
around inside the conference hall on U-shaped table. There was lots of officers sitting, approximately 24-25 officers over there. So I did not become nervous at all. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सबके रैंक, सबके मेडल्स अच्छे से देखे, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे। और मैंने पहला जो मेरा नज़र था वो प्रेसिडेंट सर की तरफ था, तो और जस्ट उनके बगल में फ्लैग रखी थी। हमें डीएसओ सर ने बोला था कि जहाँ पे फ्लैग रखा होगा, जो पर्सन सिटिंग बिहाइंड द फ्लैग विल आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। और उन्होंने मुझसे पूछा, सो भास्कर व्हाट डिड यू लर्न हियर इन 5 days? So I answered that, sir, I have made so many friends of different states. I have learned their culture, their languages, and I have learned a little bit spoken Haryanvi also. तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने पूछा कि apart from these things, what did you learn? मैंने बोला, sir, I have made friends of NCC also, and I have discussed some of their camp experiences and got to know that how adventurous things they do over there and how the discipline plays the crucial role for them. तो ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला, फेयर इनफ भास्कर, हाउ वाज द स्टे? मैंने बोला, इट वाज फैंटास्टिक सर, इट वाज जस्ट अ होम अवे फ्रॉम माय होम। फिर उन्होंने बोला कि सो भास्कर, एनी इम्प्रूवमेंट, एनी सजेशंस रिगार्डिंग दैट? मैंने बोला, नथिंग सर, इट कुडंट बी बेटर देन दिस। तो ये सारी चीज़ें मैंने बोला। फिर उसके बाद हमारा कॉन्फ्रेंस ओवर हो गया, लगभग 2-2.5 मिनट मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी। उसके बाद मैं आया और आफ्टर दैट मोमेंट आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी अनाउंस्ड। और वही हुआ, हमारे डीएसओ सर वो रिज़ल्ट लेके आए और उन्होंने चेस्ट नंबर 6 बोला। एट दैट टाइम मेरे आंखों के सामने सारे मेमोरीज स्लाइड करने लगे, मेरे दोस्त सब मेरे सामने आ रहे थे, मेरे आंखों के सामने वो सारे स्ट्रगल्स जो मैंने किए थे वो मेरे आंखों के सामने आ रहे थे। वो सारी जर्नीज़ जो कि मैंने जनरल कंपार्टमेंट में की थी, वो सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ रही थी मेरे आंखों के सामने। मैं काफ़ी इमोशनल भी हुआ और फिर मैंने बताया अपने मदर को, मैंने फ़ोन किया कि योर सन हैज़ मेड इट। तो वो काफ़ी खुश हुई। आप लोगों के भी पेरेंट्स काफ़ी खुश होंगे जब आप लोग इन चीज़ों को करेंगे, और आपको खुद भी बहुत खुशी मिलती है कि आपके हार्डवर्क अल्टीमेटली आपको उस हार्डवर्क का कुछ रिजल्ट मिला। तो जस्ट what I have learned from my experience is only thing that whatever efforts we put, we must be confident of on that. We must think that we will surely get success. हमें जरा सा भी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एफर्ट्स डाले हैं, हमने ऑनेस्ट एफर्ट्स डाले हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल हमें याद रहनी चाहिए। हमें अपने लाइफ को एनालाइज करना चाहिए। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है अपने जीवन में, तो वो चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। तो ये काफ़ी काम आती है वहाँ पे। और जो हमारा प्रोसीजर होता है जो एसएसबी का, वो काफ़ी वहाँ एंजॉय करना चाहिए। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं 5 दिनों तक, हमें दुनिया को अच्छे से समझने का मौका मिलता है। हम बहुत पूरे देश के लोगों से हम मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रिपीटर्स आते हैं जिनका 22वां अटैम्प्ट था, 18वां अटैम्प्ट था, ऐसे भी लोग आते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैसे हमें अपने गोल्स के प्रति काफ़ी समर्पित होना चाहिए, कभी भी उससे हार नहीं माननी चाहिए। 2-4 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स में सक्सेस और अनसक्सेस वो पर्टिकुलरली डिफाइन किए जा सकते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा अगर एसएसबी से रिकमेंडेड है तो वो सक्सेसफुल है और नहीं है तो वो अनसक्सेसफुल है। हमें छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स में सक्सेस मिलते हैं, वो भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली यही था। इस दौरान टारगेट डिफेंस फोर्सेस का रोल काफ़ी क्रूशियल था। सो जय हिंद फ्रेंड्स। होप मैं ये एसएसबी के मेरिट लिस्ट में भी फाइनली आ जाऊंगा और अपने ड्रीम को परस्यू करूंगा। थैंक यू ऑल। जय हिंद।